Good afternoon. I am Nidhi Sharma, Principal of LK Singhania Public School, and I am very happy to announce that one of our students, Anurag Tiwari, has qualified for NTSC Stage 1. Now, what is NTSC? NTSC is a national level exam for students of class 10th, and as the name suggests, it is at national level. However, the first stage is conducted by the state, and if Anurag qualifies for the stage 2, he becomes a pride of the nation. More than the scholarship that you get from the government of India, that itself is a very creditable achievement, but more than that, it is the pride and honor of being called a NTSC scholar. Why it is a pride and honor? Because till say 9th and 10th, children have small Olympiads whereby they sit into competitive exams, but this becomes the first national level competitive exam where you come to know where you stand pan-India. And the fact that Government of India, NCERT recognizes it, it becomes even better. Now, having told you about the exam in stage 1 and 2, there are basically two sets which of course we will ask the teacher and the student also to clarify, which is the MAT and SAT, Mental Aptitude Test and Scholastic Aptitude Test. And though the exam is conducted for the 10th standard students, but the preparation begins from 9th. So I would like right now the 9th standard students to get serious if they wish to qualify for stage 1 next year. And the few things that children should aim at to crack the NTSC, both stage 1 and stage 2 is, one, as I said, it's a pride and honor because it is a recognized certification by the Government of India. You get scholarship throughout, that is from your 11th to your post-graduation, and that scholarship is quite a decent amount. Then you get an increased confidence that you have become an NTSC scholar, and most of the public and private enterprises, they value the NTSC scholars. There are seats reserved for them. Further, if you want to go for higher universities, higher education, there also seats are reserved for NTSC scholars. So right now, on behalf of all students and teachers of the school, one, we are very elated. Our student Anurag Tiwari is on the threshold of becoming an NTSC scholar. To him and to so many others, I would like to say that do not rest till the time you achieve it. And I'm sure this will inspire many of my students, especially in the 9th and 10th, to take NTSC seriously, because yes, there is scholarship, but there is pride and honor, which is to be valued more. Thank you. God bless. Good morning to all of you. It is a moment of pleasure that our school student, one is Anurag Tiwari, son of Sri Anil Tiwari, who cleared that NTS exam in that first round, that is that mental ability test. Last year also, one is Bhavesh Tanan, who has completed this first round in that NTS examinations. So, it is that one kinds of spirit which way we are instructing to our students as per our NCERT syllabus is concerned. So all the students, they should participate in the class 10th exams, and they have to appear and got that opportunities to get that any kinds of positions. This year Anurag Tiwari has secured that 410 ranks, basis all Rajasthan rankings. They will secure these positions. Thanks to all of you. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अनिल तिवारी, अनुराग तिवारी का फादर, और पीजीटी केमिस्ट्री LKSPS सिंघानिया पब्लिक स्कूल में मैं इस समय कार्यरत हूँ। और बच्चे को NTSC क्रैक कराने के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि आप लोगों को 9th से ही बच्चे को इसके लिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि 9th और 10th
दोनों के फुल सिलेबस एनटीएससी में अवेलेबल हैं, आते हैं। और इसमें सबसे मेन जो की फैक्टर स्पेशली बच्चों के लिए ज़रूरी है वो मैट है। मैट जो कि 100 मार्क्स का स्पेशली होता है, और सेट जो होता है वो पूरे 100 मार्क्स के होते हैं। 100 मार्क्स में आपका केवल मेंटल एबिलिटी चेक होती है, जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, 50% वेटेज कवर होगा। और अगले जो सेट है उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें सोशल स्टडी, साइंस और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट कवर होते हैं। अगर बच्चे का 9th और 10th का साइंस, मैथ और सोशल स्टडी साथ में मेंटल एबिलिटी पर अगर अच्छी पकड़ है तो बच्चा एनटीएससी स्टेज 1 जरूर क्रैक करेगा और स्टेज 2 के लिए एप्लीकेबल होगा। स्टेज 2 जैसा कि पहले से काफ़ी लोगों को पता भी है कि स्टेज 1 ये स्टेट लेवल पर होता है, जो कि अपने राजस्थान में लगभग 500 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और स्टेज 2 जो है ये नेशनल लेवल पर है, एनसीईआरटी कंडक्ट कराती है, और इसमें ऑल ओवर इंडिया 2000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। इसलिए पहले नंबर पर बच्चों को आप लोग शुरू से 9 से ही तैयार करिए, जिससे कि बच्चे 10th में आकर के इसके लिए प्रिपेयर रहें। और सबसे ज़रूरी क्या है, अगर बाई चांस आपका बेटा या आपकी बेटी एनटीएससी क्रैक नहीं कर पाती है तो उसको आप लोग इसके लिए भी प्रिपेयर कराइए कि वो अगर बाई चांस डिफीट होता है, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता है, तो भी वो किसी तरह से जो भी पढ़ाई लिखाई उसने की है वो किसी भी एंगल से नुकसान नहीं जाने वाली है, और आगे किसी न किसी स्टेज पर उसकी हेल्प उसको मिलेगी ही मिलेगी। यानी उसको आप लोग उससे ज़्यादा आप लोग प्रिपेयर कराइए, जिससे कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। थैंक यू। Hello everyone, my name is Anurag and I am a student of class 10th and I am currently studying in LK Singhania Public School. I have recently cracked NTSC first stage. आपको NTSC क्रैक करने के लिए काफ़ी डेडिकेटेड होना पड़ेगा और आपको उसको टाइम देना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकें, उसको पढ़ सकें। और ज़्यादा ऊपर लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो केवल बेसिक्स क्लियर करके भी अपने NTSC क्वालिफाई कर सकते हैं। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर पूछता है कि कितने घंटे की पढ़ाई करी जाए, तो ये बात पूछना ठीक नहीं है। आप अपने हिसाब से पढ़ाई करिए, बस आप कंसंट्रेट होके और फोकस्ड होके पढ़ाई करिए जितनी देर भी आप कर रहे हैं। बट एटलीस्ट आई थिंक यू शुड स्टडी 4 hours टू क्रैक NTSC। और आपको NTSC का जब एग्ज़ाम देते हैं आप, तो आप 2 घंटे आपको बैठ कर फोकस्ड रहकर एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि 4 घंटे तो आपको कम से कम पढ़ना चाहिए ही, ताकि आपकी एक हैबिट रहे कि आप उधर एग्ज़ाम में बैठ के कूल माइंडेड सारा काम आसानी से कर सको, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ये नहीं हो जाए कि आपको आदत ही नहीं बैठने की और आपको एकदम से 2 घंटे बिठा दिया और आप बिल्कुल मतलब आ ही नहीं रहा समझ में कि अब करना क्या है। तो उसलिए आपको मतलब एक हैबिट होनी चाहिए। और एक पर्सनल ओपिनियन ये हो गया। और अगला क्वेश्चन ये आता है कि NTSC के लिए पढ़ना क्या है। तो पढ़ना क्या है, इसमें मैथ, जैसा कि सबने बताया है, मैथ सेक्शन होता है 100 मार्क्स का, तो उस पर आप काफ़ी फोकस्ड रहिए, क्योंकि मैथ इज अ स्कोरिंग। मैथ को अगर आप ढीला छोड़ देंगे या फिर आप उसको नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर उधर सेट में उतने मार्क्स कवर होते नहीं। उसमें जनरली SST आती है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं, मतलब रिवाइज करने में प्रॉब्लम होती है उसको। SST आएगी, मैथ्स आएगी और सारे साइंस के सब्जेक्ट आएंगे। तो इसलिए आपको फोकस्ड मैथ पे करना है, ताकि मैं मैथ में एक अच्छा खासा और एक बढ़िया स्कोर कर लूँ, ताकि जो फर्स्ट एग्ज़ाम जो है वो मैथ का ही है, उसके बाद सेट होता है। तो मैथ में अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप सेट अपने आप खुद ब खुद अच्छा कर सकते हैं। और मैथ में आपको एनालॉजी और नंबर सिस्टम और लेटर रिपीटिंग सीरीज एंड ऑल दैट, ये सब आपको काफ़ी हद तक करना पड़ेगा। और क्लॉक टेस्ट, कैलेंडर टेस्ट, इनके कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये भी स्कोरिंग है। इन सबको अगर आप इन पे फोकस करेंगे तो काफ़ी हद तक आपके लिए बेटर होगा। और अगर सेट की बात करें तो सेट में आपको मैथ्स पर अच्छा खासा कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि 20 मार्क्स का होता है सेट, इसलिए 20 मार्क्स का होता है मैथ्स, इसलिए आपको उस पर फोकस रहना चाहिए। साइंस, कमिंग टू साइंस, आप केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ें, NCERT से पढ़ें। फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, क्योंकि न्यूमेरिकल का वेटेज ज़्यादा होता है। और बायोलॉजी में NCERT प्रिफरेबल है, NCERT के अलावा और कोई सी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप 9th के स्टूडेंट हो, तो अगर आपको NTSC क्लियर करना है तो आप 9th से उसके लिए लगिए। अभी के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो 9th में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उसको अच्छे से
मतलब रिवाइज करिए, उसको अच्छे से पढ़िए, ताकि 10th में जाने के बाद आपको केवल एक बार रिवीजन करना पड़े और काफ़ी हद तक आपका काम हो जाए, क्योंकि 10th बोर्ड क्लास होती है, बोर्ड के साथ साथ NTSC भी आपको करना है, तो उसके लिए आपको काफ़ी हद तक ये क्लियर रहना पड़ेगा कि 9th के टॉपिक्स मेरे क्लियर हैं, मुझे केवल 10th पे फोकस करना है और 9th का रिवीजन करना है। 10th के लिए अगर 10th क्लास में आप हैं, आपने 9th के टॉपिक्स अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो उनको रिवाइज करिए, साथ ही साथ 10th के भी टॉपिक्स क्लियर करते रहिए कि अब मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। ऐसे करके आप करेंगे, लास्ट टाइम में केवल रिवीजन, और अगर हो सके तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करिए, ये काफ़ी हद तक बेटर रहेगा। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि NTSC क्लियर करना केवल एक बच्चा ही क्लियर नहीं करता, उसको उसके पेरेंट्स इंस्पायर करते हैं, टीचर्स इंस्पायर करते हैं, तो अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को ये थैंकफुल हूँ मैं, और उनको थैंक्स कहना चाहूँगा, और थैंक्स टू LKSPS। थैंक यू। लाला कैलाशपत सिंघानिया पब्लिक स्कूल के कक्षा 10 के छात्र अनुराग तिवारी ने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का प्रथम चरण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर NTSC सेकंड स्टेज क्वालिफाई किया है। यह परीक्षा मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NCERT द्वारा 2 चरणों में आयोजित करवाई जाती है। इस परीक्षा का प्रथम चरण राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 13 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया, जिसे अनुराग ने और राजस्थान रैंकिंग 410 के साथ उत्तीर्ण किया और NTSC सेकंड स्टेज क्वालिफाई किया। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती निधि शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में अनुराग ने विद्यालय के अध्यापकों के सहयोग से परीक्षा के दोनों स्तरों बौद्धिक योग्यता और शैक्षिकी योग्यता में कड़ी मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त किए। प्राचार्य ने यह भी बताया कि NTSC फर्स्ट स्टेज हेतु विद्यालय में यह लगातार दूसरे वर्ष सिलेक्शन हुआ है। 2019-20 में विद्यालय के छात्र भावेश तानन ने भी फर्स्ट स्टेज उत्तीर्ण कर सफलता का परचम लहराया। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती निधि शर्मा व उप प्राचार्य श्री HM प्रधान ने NTSC परीक्षा हेतु विद्यालय के छात्रों को इस कोरोना काल में दिशा निर्देश व कड़ी मेहनत कर अच्छा परिणाम देने के लिए संबंधित विषय अध्यापकों के प्रयासों की सराहना की व उत्साहवर्धन किया। वहीं अनुराग ने इस सफलता का श्रेय विद्यालय के अध्यापकों व अपने माता पिता को दिया है।